Recording in progress. So very good evening to everyone. We have started in our batch with the PGBP का lecture and PGBP में at least we have done 2 to 3 lectures already. But मैं वो 2 से 3 lecture में क्या था? So when it comes to lecture number 1, जो मैंने lecture number 1 में करवाया था, that was introduction of PGBP section number 28. Depreciation same was again repeated in lecture number 2. और आज जो किया था सुबह in the morning, that was lecture number 3, but already the students who have done lecture number 2 and lecture number 3 उनका already lecture number 1 हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 और 2 पूरा repeated हो गया था, कुछ भी उसमें नया नहीं था. So I can say this is the morning में second lecture था और अभी हमारा third lecture है. मैम क्या किया था क्विकली अब आप रिकॉल करवा दोगे? इट विल टेक हार्डली 2 to 3 minutes फॉर मी टू रिकॉल दिस थिंग्स. कैसे अब ये रिकॉल तुमको सीखना है, द एक्टिव रिकॉलिंग. सबसे पहले मैंने बताया था सेक्शन नंबर 28. मैम सेक्शन नंबर 28 में आपने क्या कहा था कि प्रीवियस ईयर में, इन द प्रीवियस ईयर, इफ देयर इज एनी बिजनेस और प्रोफेशन और बिजनेस एंड प्रोफेशन से यू गेन एनी इनकम और यू हैव एनी प्रॉफिट दैट इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. और क्या कहा था? सेकंड वाज ड्यू टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, there is any termination modification of the business contract, and due to termination modification of business contract you are earning something, वो भी कहाँ चार्जेबल है? अंडर द हेड पीजीबीपी. और क्या बताया था? if you are doing export and you got any export assistance like cash assistance, duty drawback, profit on sale of import, entitlement license, these are all again considered to be chargeable under the head PGBP. और क्या बताया था मैम? when stock in trade get converted into my capital asset, for the first time income tax has done one thing, that is stock in trade get converted into capital asset. For the first time notional gain is taxable. Detail we have already done in lecture number 1, so you can watch that. That has been uploaded right now on YouTube हो गया, so you can just recover this from there. और क्या था मैम? non-competing fees, if you are paying to someone and the person who is receiving that non-competing fees or payment for non-sharing the copyright patent, that is also chargeable under the head PGB. Partner को you are paying interest, bonus, commission, remuneration, that is all chargeable under the head PGBP. ये सारी चीजें हमने मैम कहाँ की थी? We have done in section number 28. और section number 28 के उसमें कुछ आपने कहा था, I have said that section number 28 में one of the clause is missing in compact. We will do that clause, but जहाँ पे relevant place पे आएगा वहाँ करेंगे. फिर section number 28 में हम वापस को नीचे क्या कर देंगे? mention कर देंगे. What was section number 29? Nothing but computation of PGBP. तो computation of PGBP में आपने क्या बताया था? अभी पेज पलटना 1, सिर्फ ध्यान इधर, ठीक है? Computation of PGBP में क्या बताया था मैम? सबसे पहली स्टेप, you will check the income. इनकम में क्या चेक कर रहे हैं? द इनकम दैट इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड अंडर द हेड पीजीबीपी, बट अभी तक क्रेडिट नहीं किया. तो इनकम रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड अंडर द हेड पीजीबीपी, बट अभी तक आपने क्रेडिट नहीं किया, दैट इज अगेन क्या होगा? उसको क्रेडिट करो. सेकेंड क्या होगा? द इनकम हैज बीन क्रेडिटेड अंडर द हेड पीजीबीपी, बट वो तो अदर सोर्स का है. इनकम हैज बीन क्रेडिटेड अंडर द हेड पीजीबीपी, पर वो कहाँ है? शायद कैपिटल गेन का. दैट मींस अदर हेड का इनकम है, किसी और हेड का इनकम है, बट यू हैव चार्ज अंडर दैट पीजीबीपी, उसका एडजस्टमेंट करने वाले थे. फिर हम और किसको देखेंगे? एक्सपेंस को चेक करेंगे कि एक्सपेंस ऑलरेडी यू हैव अलाउड, बट एक्चुअली दैट इज एन डिसअलाउड एक्सपेंस. और क्या था मैम? एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड टू बी अलाउड, बट अभी तक उसको तुमने कंसिडर ही नहीं किया. दिस आर ऑल द एडजस्टमेंट यू विल डू इन सेक्शन नंबर 29, एंड दैट इज नथिंग हाउ टू कंप्यूट PGBP income. Is it important मैम? This is application वाला, पर application की step I have to tell you, तो इसीलिए for that purpose I have told you that. Coming to section number 30. हमारे यहाँ आज का दिन जो रहता है वो जेट प्लेन निकलने का दिन रहता है. ये जेट प्लेन निकलने का दिवस होता है, और ये जनरली तभी होता है जब मैं क्लास ले रही होती है, वो स्पेशली तभी निकलता है. तो अगर मैं म्यूट कर दूं तो समझ जाना कि उन्होंने ठान रखी है कि ये क्लास ले रहे हैं, तो अभी मेरे को निकलना है.
और फिर वो एक दो नहीं निकलते, एक साथ 4-5 पूरे निकलेंगे एक एक 2-2 मिनट के गैप में, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि म्यूट हो गया मतलब वो आ गए, ठीक है, उसमें मेरी आवाज में सुनाई नहीं देगी। चलो सेकंड मैम, व्हाट इज सेक्शन नंबर 30? सेक्शन नंबर 30 है कि देखो मैम, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस दैट मींस बिल्डिंग इज नीडेड। तो सेक्शन 30 इज अबाउट बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या मैम? बिल्डिंग रेंट पे भी हो सकती है। बिल्डिंग किस चीज की हो सकती है? ओनर, यू आर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। मैम अगर बिल्डिंग के रेंट पे लिए आपने, इफ यू हैव टेकन बिल्डिंग ऑन रेंट, रेंट अलाउड? यस। रेट इंश्योरेंस टैक्सेस अलाउड? यस। बिल्डिंग के रिलेशन में रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस टैक्सेस सब कुछ अलाउ होते हैं। और इसके बाद मैम क्या है, अरे सॉरी तुम लोग तो नए हो, तुम लोग ने नहीं किया है ना, सॉरी, मुझे लगा सब कुछ हो चुका है, मैं बिल्कुल रिवीजन मोड पे आ गई थी। चलो सो अभी हमने सेक्शन नंबर 30 नहीं किया है। सेक्शन नंबर 30 इज रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 30 किस रिस्पेक्ट में? सेक्शन नंबर 30 रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। ये क्या बोलता है? सिंपल सी बात कहता है कि देखो भाई, ये क्या है, ये हो गई हमारी बिल्डिंग। अब वो बोलता है देखो, बिल्डिंग के दो तरीके हो सकते हैं, या तो दिस इज अ रेंटल बिल्डिंग, ठीक है, और दिस इज नॉट अ रेंटल बिल्डिंग बट यू आर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। दो ही चीज हो सकती है, या तो बिल्डिंग रेंट पे, या तो तुम क्या हो, ओनर हो बिल्डिंग के। इफ रेंट पे है तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो अलाउड। अलाउड मतलब, अरे भाई रेंट पे कर रहे हो, रेंट पेमेंट इज नथिंग बट एन एक्सपेंस, तो दैट एक्सपेंस इज अलाउड। इसके अलावा हो सकता है बिल्डिंग का यू हैव टू डू द रिपेयर, तो मैम रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग इज अलाउड। यस, रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग इज अलाउड। मैम इंश्योरेंस इज अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। यस, इंश्योरेंस एक्सपेंस विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग इज ऑल्सो अलाउड। मैम टैक्सेस आर अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। यस, टैक्सेस आर ऑल्सो अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। इसका मतलब सिंपल सा है, इसको ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करने वाली हूँ। सिंपल बोल रहा है कि अगर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज ऑन रेंट, तो रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑल आर अलाउड। बट मैम नाउ आई एम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, तो ओनर ऑफ द बिल्डिंग के केस में ऑल दिस थ्री थिंग्स विल बी अलाउड, दैट इज रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस। क्योंकि ओनर हो तो रेंट पे नहीं कर रहे हो, तो रेंट विल बी, वहां पे बात ही नहीं आती रेंट की। तो ये सबसे सिंपल सेक्शन था जिसको आई डोंट थिंक आई शुड इवन गिव अ फोकस ऑन। लेकिन अब जो मेन चीज है उस पर फोकस करना बनता है। समझो मैम, ये कौन है? ये कौन है? दिस इज द पर्सन हु हैज टेकन दिस बिल्डिंग ऑन रेंट। दिस इज द पर्सन हु हैज टेकन दिस बिल्डिंग ऑन रेंट। इससे क्या होगा मैम? मैम ही हैज टेकन द बिल्डिंग ऑन रेंट, ये रेंट पे करेगा। आपने बोला द रेंटल इज अलाउड। मैम अगर कुछ रिपेयर किया तो इन दैट केस रिपेयर विल आल्सो बी अलाउड। मैम इफ इट इज इंश्योरेंस, यू सेड कि इंश्योरेंस इज अलाउड। इफ इट इज टैक्स, यू से टैक्सेस आर आल्सो अलाउड। बट मैम पता है क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग है ना, ही वांटेड कि इस बिल्डिंग के ऊपर क्या चाहिए, इसको एक वेयर हाउस चाहिए, और एक क्या चाहिए, रूम चाहिए इस बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पे ये क्या बनाना चाहता है, वेयर हाउस बनाना चाहता है। इधर क्या चाहिए उसको, एक वेयर हाउस चाहिए। नाउ व्हेन ही कॉन्टेक्टेड द ओनर, तो ओनर बोलता है यू हैव टू डू द एक्सपेंसेस, तुम करो वो एक्सपेंसेस, और तुम क्या कर लो, आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, वो तुम देख लो, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, यू हैव टू डू द एक्सपेंस। मैम इफ ही इज मेकिंग वेयर हाउस, अगर वो कंस्ट्रक्शन करवाएगा वेयर हाउस का, तो मैम दिस इज नॉट रेंट, ये किसी तरह का रिपेयर भी नहीं है, दिस इज नॉट इवन अ रिपेयर। मैम ये इंश्योरेंस भी नहीं है, ये टैक्सेस भी नहीं है। मैम अगर आप समझ पा रहे हो तो इट इज कंस्ट्रक्शन, एंड कंस्ट्रक्शन बार बार नहीं होता। मैम ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है, और मैम कंस्ट्रक्शन बार बार नहीं होता, इसका मतलब मैम ये तो कैपिटल एक्सपेंस है। बट मैम एक चीज आपको अच्छे से समझा दें, क्या कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज अलाउड अंडर सेक्शन 30। अंडर सेक्शन 30 कहता है कि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे।
बट मैम अब आप इसके बारे में सोचो, द रेंटर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इफ ही इज नॉट गेटिंग द डिडक्शन, ये सही नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या लिखोगे तुम? व्हाट विल यू से कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में लिखा है, स्पेसिफिकली दिस हैज बीन मेंशन्ड इन इनकम टैक्स कि इफ अ रेंटर डज कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज कंसिडर्ड डीम्ड बिल्डिंग। उसको टर्मिनोलॉजी क्या दी है? इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड बिल्डिंग, एक्चुअली इट इज नॉट बिल्डिंग। मैम सपोज वेयर हाउस की जगह कुछ और ऐसा एक्सपेंडिचर ही वुड हैव डन, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हो सकता है ना कि इंस्टेड ऑफ वेयर हाउस सम अदर एक्सपेंडिचर ही हैज डन, दैट इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन केस ऑफ रेंटर हु इज नॉट द ओनर ऑफ द एसेट, इट इज कंसिडर्ड डीम्ड बिल्डिंग। तो मैम वो उसकी बैलेंस शीट में क्या शो होगा? डीम बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग है तो 10% depreciation he can claim. Understood? So that is with respect to section number 30. Quick recap. Section number 30 is with respect to building. Building, if you are the owner of the building or you are the renter of the building, repair is allowed, insurance is allowed, taxes are allowed. But if you are the renter of the building, rent is also allowed. Every kind of revenue expenditure is allowed, but if renter does a capital expenditure, in such a case it is not allowed under section 30. It is allowed actually under section 32 because it is considered deemed building. और deemed building तो उसको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? It will be depreciation he would be claiming. And depreciation क्या था? Mandatory expenditure. Mandatory you have to claim that. ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैम सेक्शन नंबर 30 तो हो गया। मैम इसमें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनर करेगा तो राइट नाउ यू आर सेइंग कि रेंटर इज डूइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड बिल्डिंग। व्हाट इफ इट इज डन बाय ओनर? तो सिंपल सी बात है, इफ ओनर इज डूइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपका क्या है, ओनर है, ओनर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, तो अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या मैं सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट में उसको ऐड कर दूं? यस, यू हैव टू ऐड इट टू द एक्चुअल कॉस्ट, यू हैव टू ऐड इट टू द WDV, दैट इज इट। तुम उसको क्या करोगे? उसमें ऐड करोगे एंड देन ही कैन क्लेम व्हाट? डेप्रिसिएशन। सिंपल। तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 28, 29, 30। अब सेक्शन नंबर 31 किस चीज के लिए? मैम बिल्डिंग लेके कुछ नहीं होता है। It's not only building. Building के अंदर we need plant and machinery and furniture. Building के अंदर what we need? We need plant and machinery and furniture for the purpose of business. So point to be noted, from plant and machinery or furniture could also be taken on rent. सुन लो, plant and machinery and furniture could also be taken on rent. But in case of plant and machinery and in case of furniture, if you take it on rent, वो section number 31 में allow नहीं होता है। मैम are you trying to say वो allow होगा ही नहीं? It is not allowed under section 31. तो मैम कहाँ allow होता है? It is allowed under section 37. कहाँ allow होता है? 37. अब लगे हाथ जब section 37 की बात निकली है तो पहले 37 को भी समझ लेते हैं। So none of you have understood अभी तक 37 ना 37 क्या है? अब एक चीज बताओ प्लीज, अभी इधर ही ध्यान रखो। When I give you the reading time, मैंने बोला है कि एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद बुक खोलेंगे, सब कुछ हाईलाइट भी मैं ही करवाऊंगी, वो फिर से तुम्हारा रिवीजन होगा और सब कुछ लिखवा दूंगी। डोंट फोकस ऑन राइटिंग राइट नाउ, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो दिमाग में नहीं जाता है। तुम 2 टास्क मत करो। मैम आपने पता है अभी क्या बोला कि if rent पे plant and machinery has been taken or furniture has been taken, that उसका जो rental है ना, that expenditure is not allowed under section 31, that is allowed under section 37. Perfect, मैंने यही बोला। मैम ये 37 क्या है? What is this 37 all about? अब सुनो, when it comes to a business, business में सैलरी भी एक्सपेंस है, yes मैम। बिजनेस में मार्केटिंग भी एक्सपेंस है, ये भी सही है मैम। रिपेयर भी एक्सपेंस होता है बिजनेस में। बिजनेस में अगर कोई कस्टमर आया, आई एम गिविंग टी टू द कस्टमर, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर। मैम इसके अलावा क्लीनिंग के लिए कोई मेड रखी हुई है बिजनेस में, दैट इज आल्सो एन एक्सपेंडिचर। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो कि टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी कवर्ड। स्पेसिफिक नाम लिख लिख के मेंशनिंग द नेम की ये सैलरी है, ये रेम्युनरेशन है, ये बोनस है, ये है, ऐसे आप कवर नहीं कर सकते।
फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस कवर किया। अरे कितने टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर यू कैन एक्सपेक्ट इन अ बिजनेस। कैसे, अब सपोज करो मेरा यहाँ पे केबल खराब हो गया, तो केबल खराब हो गया तो आई एम परचेसिंग केबल। अब मैम केबल मुश्किल से 150 रुपीज का है, दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो देगा, बट उस पर कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी ना लेने बैठूंगी मैं। तो आर यू गेटिंग कि इतने कितने सारे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है जिसको किसी स्पेसिफिक सेक्शन में यू कैन नॉट फिक्स, यू कैन नॉट फिक्स दोज इन अ स्पेसिफिक सेक्शन। तो इसका मतलब समझ रहे हो, कोई एक जनरल सेक्शन वाज नीडेड ना, जो बोल दे कि इफ द एक्सपेंडिचर इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस अंडर दिस सेक्शन इट विल बी अलाउड। तो समझ रहे हो सेक्शन नंबर 37 क्या है? सेक्शन नंबर 37 इज दैट जनरल सेक्शन। वो जनरल सेक्शन है, वो कहता है इफ कंडीशन नंबर 1, if you have done expenditure for the purpose of business or profession, if you have done expenditure for the purpose of business and profession, condition number 1. Condition number 2, that is a revenue expenditure. Condition number 3, that expenditure is not being prohibited in any section. मतलब कि ये expense तुम ले सकते हो, deduction ले सकते हो, that has not been prohibited anywhere. And condition number 4, it should not be an illegal expenditure. 4 condition है। सबसे पहले that expenditure should be for the purpose of business and profession, चलो भैया ठीक है। Second चीज, that expenditure should be for the purpose of business and profession, and दूसरा क्या, it should be a revenue expenditure, ठीक है। It should not be blocked or it should not be prohibited anywhere, कि इसको disallow किया ऐसा कहीं लिखा नहीं होना चाहिए। And fourth, it should not be an illegal expenditure. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, if all these criteria are fulfilled, तो वो कोई भी नेम से बोलो, whatever name called, expenditure by whatever name called, उसको अलाउ कर देंगे। तो इसीलिए बोला प्लांट एंड मशीनरी मैम रेंट पे लिया, revenue expenditure, yes. Is it for the purpose of business? Yes. Is it prohibited somewhere? nahi. Is it legal expenditure? Yes. So yes, under section 37 it is allowed as an expenditure. Understood? तो हर चीज किसी स्पेसिफिक सेक्शन में you cannot cover. तो जब स्पेसिफिक सेक्शन में कवर नहीं कर सकते हो तो तब जन्म किसका होता है, तब बर्थ होता है सेक्शन नंबर 37 का, कि जनरली ये 4 कैटेगरी, इफ यू फुलफिल दिस 4 कंडीशन यू फुलफिल, यस इट इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर अंडर दैट पीजीबी। अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 37? समझ में उसका इंपॉर्टेंस? अब मैम सीएसआर एक्सपेंडिचर, क्या बोल रहे हो? सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ma'am, this corporate social responsibility we are doing for the purpose of business, but it is not your expenditure. That is actually a legal liability imposed on you. Are you getting? Second, freebies समझते? ये चौथा है, तो पता भी नहीं चला होगा ये फोर्थ है। बीच में मैं जब ड्राइंग करने लग गई थी ना, इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ कि तुम निकल जाओ। चलो, सो फ्रीबीज क्या होता है? मेडिकल में जनरली ये फ्रीबीज दी जाती है। मेडिकल में मतलब डॉक्टर को जाके स्पेसिफिकली गिफ्ट दिया जाता है कि प्लीज रिकमेंड दिस मेडिसिन, और ये होता है, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि डॉक्टर की फील्ड में ये होगा कि जाएंगे उसको मेडिसिन के साथ में कुछ और भी देंगे कि प्लीज ये रेफर करो। सो वो एक्चुअल में इलीगल है, दैट इज इलीगल। तो इफ यू आर गिविंग फ्रीबीज, यू आर गिविंग ब्राइब, तो ये मैम रेवेन्यू हो सकता है, ये रेवेन्यू हो सकता है, ये बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है, बट दिस इज एन इलीगल एक्सपेंडिचर एंड इलीगल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। सो यहाँ पे व्हेन यू मूव टू सेक्शन नंबर 37 यू विल फाइंड कि सर्टेन एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली गिवन कि ये वाले एक्सपेंडिचर इवन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट दे आर इलीगल। मैम पेनाल्टी, पेनाल्टी क्यों करी आपको, क्यों लगी पेनाल्टी? व्हाई पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन यू? बिकॉज आपने कुछ तो इलीगल किया होगा। सो इफ यू आर पेइंग द पेनाल्टी इन सच अ केस, इफ एक्ट के लिए पेनाल्टी पे की, रिपीटिंग माय वर्ड, ड्यू टू एनी एक्ट यू आर पेइंग अ पेनाल्टी, तो वो तो अलाउ नहीं होगी। बट मैम दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
breach of my business contract because of which I am paying the penalty, वो allowed है because that is because of business. तो किसी एक्ट के लिए, किसी लॉ के कारण, ब्रीच ऑफ लॉ के कारण यू आर पेइंग द पेनल्टी, वो इलीगल है. बट बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट यू आर पेइंग द पेनल्टी, दैट इज नॉट इलीगल, दैट इज ड्यू टू द बिजनेस. क्यों मैम, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमको बोला था 60 डेज में क्लासेस एंड हो जाएगी, और वी हैव डिसाइडेड मैम इफ 60 डेज में क्लास एंड नहीं होती है तो यू हैव टू रिफंड 50%. तो दैट इज काइंड ऑफ पेनल्टी फॉर मी ना, कि यू हैव टू रिफंड 50%. तो ये क्या हो रहा है? अलाउड है बिजनेस में. आपको बोला था ये कंस्ट्रक्शन इतने टाइम में यू शुड कंप्लीट, अदरवाइज इतना पेनल्टी वी विल इम्पोज. तो ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टीज आर अलाउड. अंडरस्टूड? तो क्या मैम साथ ही साथ सेक्शन नंबर 37 का पूरा आइडिया दिया? पूरा आइडिया नहीं, इफ यू विल रीड दिस, अभी दूंगी टाइम. सेक्शन नंबर 37 इज ऑल अबाउट it should be business expenditure lawful, should not be prohibited anywhere. ये कहीं भी prohibited नहीं होना चाहिए. तो in such a case you can say कि yes it is allowed expenditure, but CSR नहीं. Penalty in case of law वो नहीं. इसके बाद CSR expenditure is not allowed. Specifically freebies दिए, that is not allowed. ठीक है मैम. अब आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, आप पता है क्या करने वाले हो? थोड़ा थोड़ा मैं इधर उधर से ना लिंक क्रिएट कर रही हूँ. मैम पता है क्या किया? एक्सपेंडिचर तो यू हैव डन, अलाउड एक्सपेंडिचर यू हैव डन, एक्सपेंडिचर यू हैव डन एंड अलाउड एक्सपेंडिचर यू हैव डन, पर एक गलती कर दी. क्या कर दिया? यू हैव पेड इट मोर देन 10,000 इन कैश इन अ सिंगल डे. क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट, एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या है? पेमेंट. मैम पेमेंट से लिंक एक और चीज चेक करनी पड़ेगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लिंक द कॉन्सेप्ट जहां से वो लिंक होता है एक्चुअल में. मैम एक्सपेंडिचर यू हैव टू डू एंड यू आर डूइंग द एक्सपेंडिचर, दैट इज आल्सो ओके. बट पता है आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 इन कैश इन सिंगल डे, सिंगल ट्रांजेक्शन. इसका मतलब दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड. क्योंकि सेक्शन नंबर 40A3 में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 40A3 स्टेट्स कि इफ इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन यू आर पेइंग मोर देन 10,000 इन कैश, दैट एक्सपेंडिचर वेदर कैपिटल और रेवेन्यू डिसअलाउड. चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, डिसअलाउड है. बट मैम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यू हैव टू ऐड बैक टू P&L, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट विल बी एडेड बैक टू द कॉस्ट ऑफ असेट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर असेट. इफ इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ असेट, नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, एडेड बैक. आर यू गेटिंग? अब आप अभी क्या कर रहे हो? आपने बोला सेक्शन 30 इज रिलेटेड टू बिल्डिंग. यस. सेक्शन 31 प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, यहाँ पे रिपेयर अलाउड है, इंश्योरेंस अलाउड है. यस. बट इफ आई टॉक अबाउट रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, दैट इज अलाउड बट अंडर सेक्शन 37. देन सेक्शन 37 की भी कंडीशन वी हैव डन कि दिस आर द 4 कंडीशन एंड वो फुलफिल होती है तो एक्सपेंडिचर किसी भी वॉट एवर नेम कॉल्ड, बट वो क्या होगा? तुमको PGBP में अलाउ हो जाएगा. डन. देन मैम उसके बाद क्या किया था? सेक्शन नंबर 31 के बाद सबसे मेजर सेक्शन ही जिसको कंप्लीट करने के लिए आज हम आए हैं यहाँ, दैट इज सेक्शन नंबर 32. द लेंथीएस्ट जो सेक्शन बोलूंगी ना PGBP का, दैट इज ओनली 32. एंड यू कैन नॉट इन एनी एग्जाम, इन एनी अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कि इसका एडजस्टमेंट दे विल नॉट गिव. भले ही वो सिंपल से सिंपल एडजस्टमेंट होगा या फिर टफ से टफ होगा, बट डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ऑलवेज इज देयर. तो इसको जितना इजी पढ़ने में लगता है उसको सॉल्व करने में ज्यादा यू हैव टू गिव द एफर्ट्स. ठीक है मैम. अभी तक आपने फिर अब डेप्रिसिएशन में क्या क्या बताया था कि डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी. डेप्रिसिएशन की देयर आर 2 मेथड्स, WTV and SLM, and this WTV SLM method is applicable on block of asset, but SLM एसेट वाइज होता है, WTV ब्लॉक ऑफ एसेट होता है. मैम ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब सेम क्लास सेम रेट ऑफ एसेट होता है. देन इफ आई टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन तभी अलाउ होगा व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड यू शुड बी द ओनर, not a registered owner. Even if you are a beneficial owner, then also okay. If asset is acquired and put to use for less than 180 days,
or equal to 180 days, तो मैम 50% of the rate of the depreciation will be allowed, and if it is put to use for more than 180 days, तो 100% जितना rate दिया होगा उतना depreciation will be allowed. फिर आपने मैम सुबह क्या बताया था कि if the asset is used for the purpose of business, yes, asset is used for the purpose of business. 60% it is used for agriculture वाला, 40% it is used for non-agriculture related. पर remember यहाँ लिखा है it should be used for the purpose of business. तो yes, 100% depreciation will be allowed क्योंकि वो बोल रहे business के लिए use करो. ये नहीं बोला कि taxable nature of the business के लिए you should use the asset. मैम again एक और था क्या? I have an asset, 60% used for personal purpose and 40% it is used for business purpose. Now you will get part depreciation. क्योंकि depreciation की condition ही हमने सुबह क्या पढ़ी थी? Depreciation is allowed only when asset is put to use for the purpose of business. तो जब personal use के लिए ले रहे हो तो now partial depreciation will be allowed. मैम फिर से एक asset है, अब क्या करूँ उसका? अब मैं भी owner हूँ and my brother is also the owner. क्या आप co-owner की बात करना चाहते हो? Yes. तो 50% property mine, 50% property का share मेरे brother का है, तो 50-50 हो रहा है. तो मैम depreciation भी कैसे allow होगा? 50-50 allow होगा. So there are three cases. When you will find there are 3 cases in depreciation, you will find कि कुछ percentage apply करना है. Case number 1, when co-owner का concept, definitely percentage applicable होगा. Co-owner 60-50 है, co-owner 60-40 है, 50-50 है, 30-70 as the case may be. Second one फिर से percentage कब applicable होगा? Private and personal purpose के लिए, private purpose and business purpose के लिए same asset is being used. Again you will apply partly वाला concept. And third एक और जगह में ratio applicable है. When due to demerger, due to amalgamation, due to succession. अभी मैंने सिर्फ demerger का concept लिया है मॉर्निंग में साई एंड शेरडी वाला. अभी मैंने amalgamation का concept नहीं लिया, उसके अंदर succession भी नहीं समझाया है. बस मैं नेम आई एम टेकिंग कि पता हो कि ये भी है. मैम उसमें बोला था डेप्रिसिएशन पे फिर कुछ रेशियो लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड. ये कहाँ था हमारा? ये हमने सुबह पढ़ के रखा है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड. अगर मैम अमेलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है या सक्सेशन होता है, तो 3 केसेस व्हेन एक्चुअल में डिवीजन ऑफ डेप्रिसिएशन विल हैपन. क्यों याद रखना है? आइदर ये एडजस्टमेंट आएगा प्राइवेट पर्सनल वाला, आइदर एडजस्टमेंट क्या होगा को-ओनर वाला, और तीसरा एडजस्टमेंट तुम्हारा यही होगा सक्सेशन, अमलगमेशन और डीमर्जर. तो ओनली 3 केस. मैम अगेन अभी आपने कुछ बताया था ना, क्या यूज फॉर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, वहां पे तुम्हारा पार्टीशन नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज द असेट इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. क्या ये पूरा रिकॉल हो गया? कैन आई से कि डन? अब इसके बाद आते हैं जो नया सेगमेंट है मैम. whenever plant and machinery is there, जब भी मैम प्लांट एंड मशीनरी होता है तो प्लांट एंड मशीनरी के केस में ऐसा कहा जाता है कि इफ आई सेल प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैंने क्या किया, कोई प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया, या फिर यूं कहूं कि एनी डेप्रिशिएबल असेट इफ आई सेल, तो कुछ कंडीशन है जब हम बोलेंगे कि वहां पे कैपिटल गेन यू हैव टू कैलकुलेट. अब मैं किसी नए टॉपिक पे जा रही हूँ इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, और वो नया टॉपिक क्या है? सपोज ये क्या है, दिस इज माय कैपिटल असेट. ये मेरी असेट है, नॉट टेलिंग, ये मैं नहीं बोल रही कि कैपिटल असेट है, दैट वुड बी रॉन्ग. ये एक असेट है, ठीक है, दिस इज एन असेट. Now this is depreciable asset. तो मैम ये क्या है? depreciable asset है. अब समझो मेरी बात ध्यान से. यहाँ पे लिखा है कि whenever capital gain is calculated, whenever capital gain is calculated in case of depreciable asset, that gain is always long term capital gain.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG मैम। ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो पहली चीज जो मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बोलना चाह रही हूँ कि इफ एनी डेप्रिशिएबल असेट इज देयर एंड ऑन दैट डेप्रिशिएबल असेट यू वांट टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, अगर तुम्हें उस डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आई एक्सपेक्ट कि यू शुड नो द रीजन कि व्हाई इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सचिन विल नॉट बी टेलिंग दिस, लक्ष्मी नहीं बताएगी, अब्दुल भी नहीं बताएगा। आई वांट आंसर फ्रॉम अदर्स कि तुम बताओ कि व्हाट इज द रीजन कि शॉर्ट टर्म ही है। कोई ऐसा शौक आया था कि नहीं नहीं शॉर्ट टर्म रखेंगे, या कुछ तो लॉजिक हुआ होगा कि नो ऑलवेज इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो। क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो वहीं पे डेप्रिशिएबल एसेट पे तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट व्हाट इज द रीजन? टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। हेलो जोर से। हेलो यस। टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स। चिराग तुम बोलो। मैम इंडेक्सेशन मिल जाता है इसलिए क्या? इंडेक्सेशन की बात कहाँ आएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डेप्रिशिएबल एसेट की अपन वैल्यू कम करते जाते हैं एट द एंड, और फिर अपन उसको बेचेंगे, जब इंडेक्सेशन लगाएंगे तो वापस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मैम डबल बेनिफिट मिल जाएगा, बिजनेस वाले में भी बेनिफिट मिल जाएगा और कैपिटल गेन में भी बेनिफिट मिल जाएगा। चलो, एक रीजन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड रीजन है। दूसरा, गणेश वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। मैडम, वो कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। मैं ये लेक्चर होने के बाद अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। और मुझे लगता है मैम वो अपन हर साल एक्सपेंसेस लेते हैं डेप्रिसिएशन का, और उससे क्लाइंट को टैक्स बेनिफिट हो जाता है। और एट द एंड लॉन्ग टर्म, अगर उसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया तो टैक्स का बर्डन ज्यादा आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलो देखते हैं। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। अभी मैम, अपन समझते हैं। हाँ, अगर अपन डेप्रिसिएशन देते हैं तो फिर उसका वैल्यू कम हो जाएगा, और जब एट द टाइम ऑफ सेल वैल्यू ज्यादा रहेगा तो माइनस होते वक्त कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। देखते हैं, समझते हैं। अब सुनो। सो बेसिकली ये बोलते हैं, फर्स्ट चीज, ये अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डेप्रिशिएबल असेट पे इन केस, फिर अब थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ मैम, इफ इट इज व्हाट डेप्रिशिएबल एसेट एंड इफ डेप्रिशिएबल एसेट पे इन केस कैपिटल गेन इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब मैम हमेशा कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता है, नहीं। ऑलवेज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, बिकॉज कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की भी दो कंडीशन है, तभी कैलकुलेट होता है। सो इन केस सपोज कैपिटल गेन आई हैव टू कैलकुलेट, तो वो बोलता है कि वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है। रीजन समझो, व्हाट इज द रीजन मैम? सपोज करते हैं, लेट अस सपोज ये ऐसा नहीं होता, सपोज दिस इज नॉट द केस। सपोज मैम, सपोज जैसा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कंसिडर करते। क्यों मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों कंसिडर होता? बिकॉज लॉन्ग टर्म बेनिफिट विद इन 1 ईयर तो ये सेल नहीं होगा। कैपिटल असेट इज जनरली फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो सपोज कि इसे लॉन्ग टर्म ही कंसिडर किया होता है। मैम इफ यू नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना है? टेल मी कितना है? 20%। 20%। 20%। ठीक है, म्यूट करो। देन सपोज मैम ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% इज द टैक्स रेट, बट मैम इन्होंने क्या बोला? दे से कि इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल एट नॉर्मल रेट। ये किस पे चार्जेबल होता है? इट इज चार्जेबल एट नॉर्मल रेट। अब नॉर्मल रेट कुड बी 30% ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। और ऑब्वियसली पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ऑलवेज ही इज रजिस्टर्ड इन सम काइंड, चाहे LLP हो या फिर AOP हो या फिर कंपनी, ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन।
तो मैम 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, वॉट एवर द केस में बी। नाउ अगर हम बोल रहे हैं कि यू आर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, इधर से तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, एंड अगर हम इसको लॉन्ग टर्म ही कंसिडर करेंगे तो टैक्स भी कम पे करोगे ऑन द गेन, एंड बीइंग लॉन्ग टर्म यू विल आल्सो क्लेम द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो इतने बेनिफिट तो नहीं दे सकते कि तुम्हें क्या क्या दे दे। आई विल गिव यू डेप्रिसिएशन आल्सो, आई विल गिव यू lesser amount of tax rate also, then we will give you indexation का benefit also। ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? benefit benefit benefit। so instead of considering it as a long term capital gain, हम इसको क्या बोलेंगे? it is a short term capital gain, pay at normal rate, because already depreciation का benefit has been given to you, and short term capital gain पे अब तक तो indexation का benefit नहीं होता है। So are you getting the merger of two reasons? Because short term is taxable at normal rate instead of 20% flat rate, and दूसरा indexation short term पे नहीं मिलता, it is only to long term, so therefore तुम already depreciation का benefit ले रहे हो ना, you are already taking the benefit of depreciation, for that reason always short term capital gain। understood? अब मैम इतना तो समझ में आया। When we are required to calculate capital gain, आपने अभी क्या बोला था? Just now you have said the sentence कि short capital gain always calculate नहीं होता है। There are two conditions under which I have to calculate capital gain. I expect that answer. What are the two conditions? When we sell the assets, when we sell the assets. Capital asset is transferred. Capital asset is Transferred. There is a transfer. Stock in trade, ma'am. Like. Ma'am, it must मैम be ब्लॉक sold में during the asset previous year. अब ये बीकॉम एग्जाम चल रही है। Yes, ma'am. It must be sold during the previous year, and must be capital. Some must be gain has to be erased on such transfer. It must be capital It's asset sold below and there WDV. must be a transfer. It must be a capital asset, there should be a transfer। मतलब हम तो कैपिटल गेन पे पहुंचा रहे हैं उसको। चैप्टर ही ओपन कर लिया हमने कैपिटल गेन का, दैट इज अगेन मैम रॉन्ग। जो ब्लॉक है, ब्लॉक की वैल्यू नील हो गई हो और उसमें एसेट बचा हो। ब्लॉक की वैल्यू हैज बीन निल बट एक्चुअली एसेट है। हाँ एक्चुअली एसेट है। मतलब मेरे को पता है क्या करना चाहिए इस वक्त, जो अंदर से मेरी फीलिंग आ रही है ना वो ऐसी आ रही है, ऐसे करने की। भाई अब सबसे पहले एक ने बोला कि व्हेन वी सेल द असेट, क्या बोला सुष्मित ने? व्हेन वी सेल द असेट। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आज क्लास में इस चीज को बताने के लिए। व्हेन वी सेल द असेट, अरे असेट तो जनरली वी सेल, तो जनरली ये बिलो एवरेज लाइन हो गई। कंसिडर दिस थिंग, दिस इज अ बिलो एवरेज लाइन कि व्हेन वी सेल द असेट, अरे असेट तो जनरली भी सेल। अगर कोई असेट मेरे को कैपिटल असेट सेल करना है तो ऐसे तो फिर every time it is required कि capital gain has to be calculated because you are selling the asset। अगर ये लाइन हम लिख के आएंगे because you will find कि ये adjustment मिलेगा, and when this adjustment is there in the question and you are writing this line कि when the asset is being sold, 0 marks हो जाएंगे। Are you pointing कि वो wording बिल्कुल गलत है? So we know, हो सकता है अंदर पता भी हो, मन में पता होगा, पर हम क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। Second, when it comes to मीनल, अब मीनल ने क्या बोला? उसका तो अलग ही था, जो मैंने जब यूं किया वो कुछ और ही बोली थी कि when ब्लॉक में असेट तो है लेकिन निल हो गया। अब ये कैसे हो सकता है? ब्लॉक में असेट भी है और निल कैसे हो सकता है, वो एक्सप्लेन करो मुझे। ब्लॉक में एसेट है बट उसकी वैल्यू निल हो गई, वो कैसे हो सकता है? एक्सप्लेन करो। अब्दुल इज लाइक दिस, इतनी टेंशन में क्यों? ब्लॉक ज्यादा हो, मैं ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा के ऊपर सोल्ड कर दिया हो। पूरे ब्लॉक की वैल्यू 2 लाख थी और हमने सोल्ड 5 लाख पे कर दिया हो, तो फिर वो कैपिटल गेन अराइज रहेगा। मगर एसेट्स तो है, मतलब पूरे ब्लॉक के अंदर 5 एसेट्स है और हमने किसी 2 एसेट्स को अच्छी ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा सोल्ड कर दिया, तो
अब पता है क्या हुआ, सुष्मित ने जब अपना आंसर दिया था ना, अंदर फीलिंग पता थी कि दिस वुड बी द आंसर बट वर्डिंग इज रॉन्ग। मीनल ने जो आंसर दिया तो उसके वर्डिंग सही थे लेकिन उसको मीनिंग नहीं पता। तो करते क्या हो कि या तो मीनिंग पता होगा मैम हमको, या तो हमको वर्डिंग पता होगी, दोनों चीजें हमसे एक्सपेक्ट मत करो। पर हम दूसरे का इंटरप्रिटेशन बता भी सकते हैं कि उसने शायद ही इसलिए बोला होगा। अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना मैम, आर यू गेटिंग? तो दिस इज अगेन द मिस्टेक, या तो तुम्हें वर्ड पता होता है या इंटरप्रिटेशन पता होता है, पर व्हेन यू कम टू राइटिंग अ एग्जाम दोनों पता होना जरूरी है। सो व्हेन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50 बोलता है देयर आर टू कंडीशन व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। अब वो कंडीशन क्या है? व्हेन माय ब्लॉक cease to exist, block cease to exist एक हो गया। अब उसको समझेंगे हाउ ब्लॉक cease to exist। एंड सेकेंड, there are asset but opening plus WDV whatever is the value, opening plus WDV whatever is the value, उससे ज्यादा पे I have sold it, उससे ज्यादा पे मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो नेगेटिव वैल्यू आने लग गई। अब उसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में देखते हैं क्या चल रहा है। तो पहला मैं बोलती हूँ कि when my block cease to exist, now can someone tell me कि मैम how block cease to exist? चलो पहले लिख लेती हूँ, opening WDV something something something, ठीक है। उसके बाद opening WDV के बाद can I say purchase? अब purchase may be put to use, put to use less than 180 days, greater than 180 days, equal to, इसको ऐसे करते हैं, less than 180 days and not put to use, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मनी पेबल। मनी पेबल इज नथिंग बट सेल्स। नाउ यू ओनली टेल मी ब्लॉक cease to exist कब हो सकता है? when my block cease to exist, जब पूरी मैम जब assets- ऑल एसेट आर ट्रांसफर, जब मैं पूरा की पूरा ब्लॉक की सेल कर रही हूँ, आई एम सेलिंग द एंटायर ब्लॉक। अब ब्लॉक के अंदर सपोज करो कंप्यूटर्स थे सारे, 3 कंप्यूटर थे, 2 लैपटॉप थे, मैंने मेरा बिजनेस बंद किया, मैंने सेल कर दिया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? इन सच अ सिचुएशन आई कैन से ब्लॉक cease to exist, मेरा ब्लॉक सीज हो गया। इसके मैं अभी क्वेश्चन तुमको भेजूंगी दैट यू हैव टू सॉल्व, इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकलेंगे। तो मैम व्हेन ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट का मतलब ये सबसे पहले जो भी वैल्यू हुई होगी, लेट्स से यहाँ पे मैम इसको 10,000 लेते हैं, इसको पूरे को हम 50,000 लेते हैं, तो कहना है कि 60,000 का यू हैव द वैल्यू इन हैंड, बट आपने उसको क्या करा, सेल कर दिया, एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। अब कितने में भी सेल करो, लेट्स से कि तुमने अभी क्या बोला मैम, ये 10,000 था ओपनिंग, ये 50,000 था, तो एक्चुअल टोटल हो गया 60,000। आइदर यू सेल इट फॉर 80,000 और यू सेल इट फॉर 50,000, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, बट एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। तो वो कंडीशन नंबर 1 है व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। अब सेकेंड, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ है, बट क्या हुआ, ये ओपनिंग WDV being 10,000, ठीक है। Then again my purchase, अब मैं पूरा नहीं लिख रही 180 लेस देन ये सब ना लिख के डायरेक्टली आई एम राइटिंग 50,000, तो मैम ये कितना हो गया, दिस इज 60,000। नाउ मैम सेल्स, पता है कितने में सेल करा, वी सोल्ड फॉर 1 लाख। कितने में सेल कर दिया, 1 लाख में। तो मैम एक्चुअल में द एंटायर ब्लॉक, एक ही असेट सेल किया मैंने, एंटायर ब्लॉक नहीं सेल किया, कोई एक असेट ऐसी थी जो मैंने बहुत ज्यादा बेनिफिट में सेल कर दी। तो एक्चुअली में क्या है, मेरे ब्लॉक में असेट्स हैं, बट वन ऑफ द असेट, इनमें से कोई एक असेट ऐसी थी जिसको मैंने बहुत अच्छे बेनिफिट पे सेल कर दिया, तो हो क्या जाएगा। अब कैन आई राइट हियर कि यहाँ पे
कैन आई राइट लाइक दिस, ये लिखूं या फिर यहाँ पे मैं लिखूं नील? यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, -40,000 लिखना चाहिए या नील लिखना चाहिए एज अ वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू? ये तो क्लोजिंग WDV हो जाएगा ना, क्लोजिंग WDV। तो व्हाट शुड आई? नील आएगी Nil, ma'am. सोच लो एक बार, Nil. पक्का? Nil आएगी ma'am. And So- short term capital loss 40,000. When it comes to calculation of closing WDV तो तुम्हारा नील ही रहेगा। क्लोजिंग WDV तो नील ही रहेगा क्योंकि वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये जो क्लोजिंग WDV है ये क्या रहेगा, दिस वुड बी नील। बट मैम अब हम अलग से क्या करेंगे, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि दिस वाज परचेज प्राइस and this is my sales price, तो -40,000 is short term capital loss or short term capital gain as the case may be। तो समझो एक चीज, whenever they will give you कि either block cease to exist और block is there but कोई एक असेट को हायर वैल्यू पे सेल कर दिया जिसके कारण क्या हो रहा है, पूरी ब्लॉक की वैल्यू ही खत्म हो गई। तो in such a case capital gain will be calculated, but always the capital gain will be short term capital gain। फिर इसमें भी तुम्हें क्या देखना है कि when you calculate closing WDV, तो closing WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, never ever the closing WDV can be negative। उसको पहले क्या करोगे, नील पे ही लेके आओगे। नील पे लेके आने का क्या मतलब है मैम, नील पे लेके आने का मतलब है फ्रॉम हियर आई विल नॉट सब्ट्रैक्ट 1 lakh, मैं सिर्फ 60,000 ही सब्ट्रैक्ट करूंगी in order to calculate my closing WDV। But when I will be calculating capital gain, तब फिर से opening, फिर से purchase, then minus sales और now sales will be 1 lakh, इतना subtract अब होगा and you will get short term capital gain of 40,000। आया समझ में? आया? So this is with respect to your section number 50। अब सेक्शन नंबर 50 के लिए एक बार यू कम टू पेज नंबर 109। अब एक बार पेज नंबर 109 पे आओ। चलो जस्ट इधर फोकस करते जाना बोर्ड पे, इसी को समझा रही हूँ। तो यहाँ पहला है when block of assets cease to exist। फिर से पहला क्या दे रहे हैं, block cease to exist। ठीक है, when my block cease to exist में मैम सपोज करो यहाँ पे क्या दिया है, बुक में दिया है ओपनिंग WDV कितना दिया है, द ओपनिंग WDV is 6 lakh। मैम सपोज वी हैव परचेस्ड मोर असेट, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट कितना वी हैव परचेस्ड फॉर 2 lakh। तो मैम टोटल वैल्यू कितना हो गया अभी, ओपनिंग प्लस परचेस इट मेक्स 8 lakh। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नाउ मैम ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, कब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट होगा मैम, वी आर सेलिंग इट, हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्स कितने में कर रहे हैं मैम, वी आर एक्चुअली सेलिंग इट एट 4,20,000। एंटायर ब्लॉक सेल कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं बचा, अब असेट कुछ नहीं बची, एंटायर ब्लॉक आई एम सेलिंग। तो मैम मैंने एक बार एंटायर ब्लॉक सेल किया कितने में, 5,20,000। तो हियर आई विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। पर यहाँ पे डायरेक्टली मैम कैलकुलेट नहीं करना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यू कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू कैलकुलेट WDV। अब मैम WDV मुझे यहाँ पे बताओ कि व्हाट विल बी WDV इन दिस केस। मैम ब्लॉक ही नहीं बचा, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, देयर इज नो ब्लॉक ओवर हियर। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एसेट तो खत्म हो गई, सारी एसेट आई हैव सोल्ड। तो व्हेन आई सोल्ड एंटायर एसेट, तब यहाँ WDV में क्या लिखूंगी तुम? Nil value मैम. Again nil, exactly। Yes. Are you getting whether it is case number A where block cease to exist, या फिर where even a single asset has been sold for more than open plus WDV,
दोनों ही केस में वैल्यू कितने की आती है, nil. Are you getting? मैम फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ यू कैन डू ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट माइनस सेल्स प्राइस, that will give you either gain or loss as the case may be. Understood? अब एक बार you can check that example. Quickly you can check that example. And I will be giving certain 10-5 questions based on this. वो तुमको होमवर्क में सॉल्व करके रखना है. Done? Done, ma'am. चलो. So this is something. अब अभी तक जितना पढ़ा मैम उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सेक्शन नंबर 28 का दैट इंटरेस्ट वर्ड, क्योंकि इंटरेस्ट वर्ड पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एडजस्टमेंट दैट यू विल फाइंड इन योर क्वेश्चन नंबर 1, दैट रेम्युनरेशन वर्ड. Ma'am, 29 is important, not at all. 30 is important, not at all. 31 is important, not at all. 32 में क्या important है? वो 180 days वाला concept is important. Amalgamation, demerger, succession वाला point is most important. And then coming to this, where you have to calculate capital gain. These points are important. मतलब इतना सब कुछ जो पढ़ा उसमें for the purpose of exam you will find कि questions are coming from this topic. और ये वर्डिंग से ही क्वेश्चन आ रहा है. When we will do the question bank, you will find कि ये सब इसी में से ही चल रहा है. अब मैम डेप्रिसिएशन तो भी अंडरस्टूड. एक और सेक्शन आता है दैट इज नोन एज एडिशनल डेप्रिसिएशन. अब वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो बोलते हैं कि कुछ कंडीशन है, इफ यू फुलफिल दोस कंडीशन तो ही तुम्हें क्या मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. मैम कितना क्यों मिलेगा वो तो छोड़ो, पहले ये बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ दैट एडिशनल डेप्रिसिएशन? रेट इज 20%. ठीक है मैम. सपोज यू आर गिविंग अस द एडिशनल डेप्रिसिएशन, आप हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रहे हो, बट द ईयर इन विच वी हैव पुट टू यूज द असेट, एक्चुअल में नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मुझे 50% ही अलाउ है बिकॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन और इक्वल टू 180 डेज. अंडरस्टूड मैम? नॉर्मल डेप्रिसिएशन 50% अलाउ है. क्यों? बिकॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन इक्वल टू 180 डेज. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 50% ही अलाउ होगा. एंड लेटर ऑन सब्सिक्वेंट ईयर में तुम क्या कर सकते हो? अनदर 50% डिडक्शन डेप्रिसिएशन यू कैन क्लेम. तो पहली चीज, what is the rate of additional depreciation? Point number 1, it is 20%. मैम वो 180 days का concept applies on additional depreciation. Yes, 180 days का concept apply on additional depreciation, but अगर इस year में 50% has been claimed, तो next year में you can claim balance 50%. मैम ये किसको allow होगा additional depreciation? अब सुनना ध्यान से. लिखा है additional depreciation is allowed if you are in the manufacturing business. You are what? A manufacturer.
आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, पहली चीज। एंड सेकेंड, generation, transmission, distribution of power. You are in power generation, transmission, distribution business. तुम्हारा बिजनेस कौन सा है? पावर जनरेशन का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एंड पावर ट्रांसमिशन का। मेरे को ना कुछ स्पेसिफिकली समझाना है। पेज नंबर कहाँ पे दिया है ये एडिशनल डेप्रिसिएशन? आई हैव नॉट येट टच। वो बीच का कुछ पार्ट है प्रोफेशन एंड बिजनेस का, जहाँ पे गुडविल का डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है, वो अभी हमने नहीं किया, वो अभी हम करेंगे भी नहीं। डायरेक्टली कम टू 114। 114 में क्या लिखा है? assessee engaged in the business of manufacture of any article। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। सिर्फ यू हैव टू मेंशन वन थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग में हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन यू विल गेट। सेकंड बोलता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर पेज नंबर वापस किस पे आओ, पेज नंबर 107। 107 पे क्या लिखा है मैम? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन? What are the methods of depreciation has been given on page number 107. वहाँ क्या लिखा है? Either you are in business of generation or generation and distribution, and they have been allowed SLM method. कहाँ पे लिख के रखा है कि if you are in power generation, generation distribution का business है तुम्हारा, या तो मैम सिंपल जनरेशन करे चलेगा, SLM भी हो सकता है, WDV भी हो सकता है। मैम जनरेशन के साथ वी आर डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो तो भी चलेगा। तुमको WDV भी अलाउ होता है, SLM भी, योर चॉइस। बट अब वो बोल रहा है कि सपोज मैम आई हैव चूजन दैट SLM मेथड, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया, तो क्या मैम अब एडिशनल डेप्रिसिएशन उनको दोगे? दे हैव चूजन, क्या चूज कर लिया? SLM मेथड चूजन बाय व्हाट? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वालों ने चूज किया। वुड यू अलाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन? तो आंसर फिर से कहा यहाँ पे बोलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ओनली इफ यू अप्लाई WDV मेथड। तो इसका मतलब सिर्फ SLM वालों के लिए सोचना, दैट मीन्स ओनली जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वालों के लिए यू हैव टू बी कॉशियस कि if power generation distribution is on the basis of SLM method they have choose, तो additional depreciation they will not get. Additional तभी मिलता है when they choose WDV। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे जहाँ लिखा है ना जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक चीज क्या लिखो? मस्ट फॉलो WDV मेथड। ऊपर लिख लो सो यू वुड नो। पहली चीज must follow WDV method। अब मेरे को ना फ्रेमिंग में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि अब क्या होगा ना, तुम आगे चल के जब सीखोगे ना तो दिमाग चलाओगे। अब देखो क्या फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है मैम। देखो यहाँ पे लिखा है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या लोगे तुम? आर दे राइटिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे तब भी क्या मैम यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? और यहाँ पे आ जाओ तुम SLM पे। SLM पे लिखा है स्पेसिफिकली जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग कि क्या इंटरप्रिटेशन में कहीं जाके कंफ्यूज हो सकते हो? इधर क्या लिखा है? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर क्या लिख रहे हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट क्या है? बस वहां पे वो जनरेशन के पास में एक एंड लगना चाहिए था, बिकॉज वेदर यू कॉल ट्रांसमिशन और यू कॉल डिस्ट्रीब्यूशन बात एक ही होती है। तो बस वहां पे वो कौन सा वर्ड छूट गया? एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले पैराग्राफ में जनरेशन एंड यू हैव टू राइट। वो एक एंड छूटने से इसका इंटरप्रिटेशन इज चेंजिंग। सो आइदर यू हैव टू बी इन ओनली जनरेशन वाला बिजनेस और यू हैव टू बी इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस, तभी एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या लिखना है वहां पे? मैम ओनली डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी इंक्लूडेड ना? ओनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि सिर्फ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन में तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, कुछ क्रिएशन ही नहीं है।
सो दैट इज जस्ट अ फ्रेमिंग का मिस्टेक, तो मिस्टेक को क्लेरिफाई करो। अंडरस्टूड क्या करना है? जो एसएलएम में कंडीशन दी है सेम कंडीशन इज हियर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वालों को दे डू नॉट अलाउ दिस। वो क्यों लिखा है कि ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, इसलिए वो और लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग? एडिशनल डेप्रिसिएशन में तो दैट यू हैव टू करेक्ट, क्योंकि आगे जाके हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन निकालोगे उसका। Now, so point number 1 is you have to be in the manufacturing business or generation or distribution या फिर generation और transmission वाला business। और का मतलब है transmission को distribution भी बोलते हैं। That is it, मैम। अब मैम क्यों मिलेगा, किस पे मिलेगा? तो only on plant and machinery, इसका भी interpretation needed। वो बोल रहे हैं मैम additional depreciation allowed on plant and machinery। Now those students know this fact, वो अभी चुप रहेंगे, वो नहीं बोलेंगे। I have purchased a tractor for the purpose of manufacturing। मैंने क्या purchase किया? I purchased tractor for the purpose of manufacturing। Normal depreciation will be allowed, additional depreciation of 20% allowed, true or false? So the students who know, वो नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला? I have purchased tractor for the purpose of manufacturing। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन आया समझ में? I have purchased tractor for the purpose of manufacturing। Normal depreciation तो allowed, whether you will allow 20% का additional depreciation। अलाउ में। Very good। Second, तुम जब आपने इतने कॉन्फिडेंटली बोल दिया ना वेरी गुड, तभी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ की है। बोलो। अरे बोलो, हो सकता है मैं तो अभी यूं ही जानबूझ के वेरी गुड बोला हूँ टू मेक यू कंफ्यूज, ऐसा हो सकता है। मैडम, डिपेंड अपॉन SLMWD। डिपेंड अपॉन SLMWD। अब कुछ तो था, तो हमको कुछ तो सोचना ही था। चिराग कहाँ पलट रहे हो पेज? बताओ। अकॉर्डिंग टू यू, ट्रैक्टर परचेस फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड, यस और नो? मैम मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज सेम और इज डिफरेंट इन दिस? सेम। अलाउड होगा। अलाउड होगा। मैम नहीं अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि आप इतना हंस रहे हो इसलिए? मैम क्योंकि मैम प्लांट एंड मशीनरी बोला है, व्हीकल नहीं बोला। वेरी गुड। और मैंने बोला था तुम लोग को बता के रखा, तुम मत बोलना है जी, या फिर तुम्हें याद है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे अलाउ होगा? प्लांट एंड मशीनरी। मैम इज इट न्यू और ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी? कुछ नहीं लिखा, तो स्पेसिफिकली न्यू पे भी होगा, ओल्ड पे भी होगा। ओल्ड मतलब सेकेंड हैंड पे भी होगा। अभी तक मुझे ये समझ में आया, अभी तक। आगे मैंने एक्सेप्शन नहीं पढ़े, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट हाँ प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। अभी मैं पढ़ के समझ रही हूँ न्यू एंड ओल्ड, माइट भी एक्सेप्शन में कुछ और आ जाए। तो बोलते हैं मैम प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी मीन्स सबसे पहले साइंटिफिक एपरेटस, स्टैटिस्टिकल इक्विपमेंट, बट प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। तो ये कहाँ से निकल गया मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन रिटन, यू शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड लाइवस्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं, और मैंने जो पूछा था ट्रैक्टर इज मोटर व्हीकल, एंड मोटर व्हीकल क्या है? दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी। बट अभी रुको जरा, सब्र करो, कुछ और भी है। क्या है? स्पेसिफिकली इन वन ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड कि स्पेसिफिक मोटर व्हीकल लिखा है, और वो स्पेसिफिकली बोलते हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन
दैट मोटर व्हीकल वाला एक्ट, तब अभी वो क्वेश्चन आएगा, तब आई विल मेंशन यू कि तब यहाँ पे ना सिर्फ प्रोविजन में उसको मेंशन कर लेना कि ओनली ऑन दैट दे विल अलाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑल्सो। अभी आएगा वो क्वेश्चन, तब वो एडिशनल डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे भी अलाउ करेंगे, बिकॉज स्पेसिफिक एक्ट में दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन मोटर व्हीकल का डेफिनेशन। तो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल के एक्ट में उसको मोटर व्हीकल ही कंसीडर नहीं किया, तो द थिंग दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज मोटर व्हीकल वो प्लांट एंड मशीनरी है। अब ये कहाँ मिलेगा? जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि इसका क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स डू प्रॉपरली प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या लिखो? प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। ये डेफिनेशन ही है जिसमें मोटर व्हीकल क्या नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता। मैम, एज पर सेक्शन 43(3) प्लांट इंक्लूड शिप्स एंड व्हीकल्स ऐसा लिखा है, मतलब मोटर व्हीकल अलग है क्या? एज पर सेक्शन 43(3) प्लांट्स इंक्लूड शिप्स एंड व्हीकल्स। स्पेसिफिक सेक्शन का छोड़ दो, स्पेसिफिक ऑलवेज ओवरराइड जनरल। अभी हम किस पे आ रहे हैं? नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन। ठीक है, अब सुनो, व्हेन इट कम्स टू अगेन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे बोला है कि देखो प्लांट एंड मशीनरी पे 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एक्सेप्ट सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब देखो, अगर तुमने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है तो इट शुड बी अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कैसे पता चल रहा है मैम इट शुड बी अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी? तो आ जाओ, दे हैव सेड एक्सक्लूड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% अलाउड एक्सक्लूडिंग सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। मैम व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सक्लूडिंग सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी? रीजन समझोगे तो रटेंगे नहीं। मैम समझो, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सक्लूडिंग सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी? मैम सबसे पहले हम कौन है? ये हम है। ठीक है, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, आई हैव परचेज दिस प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया? आई हैव सोल्ड दिस प्लांट एंड मशीनरी टू दिस पर्सन। अब मैंने क्या कर दिया? इस पर्सन को ये प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दिया। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो? सी, व्हेन आई परचेज दिस प्लांट एंड मशीनरी, जब यहाँ मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो ऑलरेडी आई वुड हैव क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन। यस, ऑलरेडी अगर माय कंडीशन इज फुलफिलिंग, मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। नाउ यू आर परचेसिंग दिस, अब तुम चाहते हो तुम्हें भी पहले डेप्रिसिएशन दे, फिर तुमको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन दे, अगेन यू विल क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन, दैट इज नॉट अलाउड। सो फॉर दैट रीजन, क्योंकि ऑलरेडी द फर्स्ट ओनर वुड हैव क्लेम्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे यू डू नॉट गेट एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी गिवन। एंड फोकस ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, तो डू नॉट फॉरगेट नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोगे, but you will not apply additional depreciation, and second hand का amount भी कितना लोगे? What will be the cost of that second hand plant and machinery? अभी आने वाला सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 वो बताएगा कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी दैट यू हैव परचेज, उसकी कॉस्टिंग वहां लिख के रखिए कि उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। मैम आप बोलना चाह रहे हो कि ये छोटी सी बात है, बट हैविंग लिंकेज एट डिफरेंट प्लेसेस, ऑब्वियसली सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यू परचेज, उसका अमाउंट व्हाट यू विल बी क्लेमिंग कि ये मेरा कॉस्ट है, वो दिया 43 सबसेक्शन 1 सेक्शन में। Then उस पे सेकेंड एडिशनल डेप्रिसिएशन you will get or you will not get, that is given here। कहाँ पे? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? आया? ठीक है, चलो बातें बाद में तो होती रहेंगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना बीच में ऐसा, तो समझ जाना मैं किसी को तो बोल रही हूँ, और कुछ तो देखा होगा वीडियो ऑन है तो, है ना? तो कोई बात नहीं, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो ना, फिर बोल रहे हैं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी रेसिडेंशियल या ऑफिस एकोमोडेशन के लिए लिए तो भी अलाउ नहीं होगा एडिशनल।
लॉजिक बताओ, रेसिडेंशियल प्लेसेस पे कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है? बिकॉज वी आर सेइंग इफ यू आर इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो ही एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस पे कुछ इंस्टॉल कर रहे तो दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैम ऑफिस में कुछ इंस्टॉल कर रहे दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फॉर दैट रीजन यहाँ पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मैम ये क्या लिखा है? शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, मोटर व्हीकल। एयरक्राफ्ट में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है? शिप में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है? दिस आर ऑल काइंड ऑफ मोटर व्हीकल्स नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी, तो तुमको वैसे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलना। मैम लास्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पे 100% डिडक्शन अलाउ। अरे जब ऑलरेडी किसी सेक्शन में यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड 100% डिडक्शन, तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन? तो 4 थिंग्स, सेकेंड हैंड पे नहीं, ऑलरेडी 100% नहीं, रेसिडेंशियल ऑफिस प्रीमाइस नहीं, एंड लास्ट इज शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं, बिकॉज मोटर व्हीकल पे वैसे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? So this is with respect to additional depreciation. Now you can read this और इसमें note number 2 highlight कर देना। मैम ये क्या बोल रही है नोट नंबर 2? आप जो बोलने वाले थे कहीं वही तो नहीं लिखा है कि क्वेश्चन में समथिंग इज मेंशन्ड? करो रीडिंग जल्दी हो एडिशनल की। Done? You got that logic section? वो second number का note क्यों highlight करने का बोला? Have we understood that कि एक vehicle ऐसा है जिसको vehicle ही consider नहीं करेंगे तो you will get additional depreciation on that. और वो लास्ट का नोट भी समझ में आ गया होगा। इफ पावर जनरेटिंग यूनिट हैज टेकन एसएलएम तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिकॉज एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी। अंडरस्टूड? डन? सिर्फ मैं लास्ट का एक्चुअल कॉस्ट का अब एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज टुमारो वी विल डू एक्चुअल कॉस्ट का थिंग। डेप्रिसिएशन में अभी मैंने क्या स्किप करवाया तुमको पर्पसली? बिजनेस एंड प्रोफेशन पे गुडविल जो होता है, गुडविल इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इन सच ए केस व्हाट इज नॉट अलाउड? डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। अब उस पे एक ऑलरेडी हमको 45 मिनट का लेक्चर लेना होगा टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। सो फॉर दैट रीजन उसको मैंने अभी स्किप किया है, तो यू हैव टू राइट देयर पेंडिंग। उस पे लिख लो पेंडिंग, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 110। Done? Now you only tell me actual cost. मैम ये actual cost क्यों? Is it part of depreciation? Exactly. ये अभी depreciation के लिए ही चल रहा है। क्यों मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे depreciation is allowed on cost of asset. तो cost भी तो सही पता होनी चाहिए कि what is actual cost of asset. So for that reason एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट यू शुड नो। अब मैम एक्चुअल कॉस्ट में तुम ही बताओ कि क्या क्या आएगा। एक तो परचेज प्राइस, और क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट इन केस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट? Transportation. Ma'am, not refundable taxes. Installation expenses. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस,
transportation. GST भी हो सकता है मैम, अगर हम उसका ITC ना ले तो। If no ITC claim, then GST also. Or Something testing, something expenses. something testing, something. अरे सीधी बात. All the expenses. फैक्ट्री to तक लाने के access to एक्सपेंसेस current. मैम। All the expenses directly Up to put to use, ma'am. attributable to the purchase. तो जितने भी expenses that is directly attributable for the purchase and to bring it to the present Current location. location and condition. सारे के सारे expenses आएंगे. Now actual cost कितना important है भाई? Very 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 important. क्यों? क्योंकि you have to judge what is actual cost और actual cost judge करके you will apply depreciation और ये भी adjustment, one of the adjustment you will find. ठीक है, तो tomorrow we will do actual cost and we will try to complete actual cost के साथ साथ 33 AVA वाले सारे provisions we will try to complete. ठीक है, इतना रिवाइज करना. कल हम वैसे भी 10 मिनट इनिशियली रिवाइज करेंगे बट तुम्हारा फर्ज ज्यादा बनता है रिवाइज करने का. ठीक है मैम, अब तो सोने का टाइम है. ये जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा ना कि why we are calculating WDV in case of section number 50 for calculation of capital gain. अभी पता है क्या मिसिंग है? बुक में है ही नहीं. क्या मिसिंग है मैम? आप बोल रहे हो मनी पेबल, मैं क्या बोल रही हूँ? मनी पेबल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. यस, किसने बोला मनी पेबल सिर्फ तब होता है व्हेन यू सेल द असेट? व्हाट इफ माय असेट हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग मी द कंपनसेशन? वो भी अभी आना चाहिए क्योंकि मनी पेबल इज नॉट जस्ट मनी पेबल जिसको तुम समझते हो सेल्स हो गया. अरे सिर्फ सेल्स नहीं है, वहां पे अभी इंश्योरेंस वाले कंडीशंस भी आएंगे. तो वहां पे फॉर दैट रीजन मैं अभी के लिए बोल रही हूँ कि टुमारो आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दैट. और वो क्वेश्चन तुमको रियलाइज कराएंगे कि कुछ चीजें इसीलिए बुक में अभी लिखना जरूरी है बिकॉज इंस्टीट्यूट नए एडजस्टमेंट ऐसे ही बनाता है. और वो नए एडजस्टमेंट कहाँ से आते हैं? तुम्हारी स्टडी मटेरियल से. बट स्टडी मटेरियल पढ़ना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो वो सारे एडजस्टमेंट यू विल राइट विथ मी. तो तुम वहां पे साइड में या कहीं पे लिख के रखना तो यू विल नो कि मनी पेबल का मतलब इंश्योरेंस वाली चीजों को भी अभी एडजस्ट करना है. और उसके और भी कंडीशंस अभी इतनी नहीं है. देयर आर मेनी मोर कंडीशन जिसका भी हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे सेक्शन नंबर 50 की. तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है. ठीक है, राशि आई गई है ना. चलो, तो अच्छे से सो जाओ. हो सके तो जब तुम नींद में जा रहे हो ना तब सोने से पहले से रिवाइज करते रहना. ऐसा होता है, मैं तो करती हूँ.